Good morning, everyone. Welcome to my class. As we have completed two exercise and we have started this exercise 3, that means not 3, it is 16.3. In this one, we have completed first two questions and we have started solving this third one also. In that, we have completed first four questions, that means A, B, C, and D. Today, we'll start with question number E. Today, we'll start with question number E. And the question number E is visible on your screen. Is it visible to everyone's screen? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड का ई. द क्वेश्चन इज व्हाट ए बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इट गिव्स सी बी 6. ए बी मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल गिव सी बी 6. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू 6. तो यदि हम बी, हाँ यदि हम बी की जगह पे 2 ले, राइट, तो इट विल बी 3 2 द 6. यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो एज आई हैव टेकन 2 हियर, तो 2 यहाँ पे भी आना चाहिए. अब हम एक ही जगह पे क्या ले कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए लास्ट में 2. इफ यू टेक a, 4. if we take a is equals to 4, तो 4 3s are 12 and therefore the value of c is 1. Correct. Therefore we can write, see, we can write, therefore if we take a is equals to 4, b is equals to 2 and c is equals to 1, then this condition holds true. Then this condition holds true. Therefore, the answer is what? The value of a is 4, the value of b is 2, and the value of c is 1. Is it clear to everyone? Students, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now move to the next one. That is question number F. इसमें क्या है? A multiply by A. Sorry, A multiply A into B, and it gives 198. It gives 198. अब यहाँ पे A और B की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. तो आप लोग बताइए अभी A की जगह पे मैं क्या लूँ, B की जगह पे क्या लूँ. यदि मैं A की जगह पे 22 लेता हूँ और B की जगह पे 8 लेता हूँ, तो चेक करता हूँ. देखो 22 इंटू 8 नहीं होगा ना, 24 इंटू 44 इंटू 8, 8 4 32, 8 चाहिए ना, तो 4 2 8. यहाँ पे मैं यदि 44 लूँ, 44 2 88 नहीं होगा. सजेस्ट मी एनी नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, लास्ट में 8 आए. ए और बी का इस तरह से नंबर लेना है. 44 इंटू 2 लेता हूँ तो 4 2 8 लास्ट में आएगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, 19 नहीं आएगा. बराबर है. यदि मैं B2 and A9. A9 तो B क्या लेना पड़ेगा, 2. Yes, sir. सही है, ये भी सही है, ये तो सिंपल हो गया. तो इफ वी टेक A is equals to 9 and B is equals to 2, then क्या होगा ये, 9 multiplied by 2 is equals to 198, right? Therefore A is equals to 2, not 2, 9, and B is equals to 2. Are the correct answer, are the correct values भी लिख सकते हो. Clear? Similarly, you can solve the next one. Just try to solve the next one. G, H और I. हाँ बोलिए बेटा. Sir, G, I'm not understanding. G और I नहीं आ रहा है. ठीक है, G और I भी कर लेते हैं. G वाले, Sir, because it is of 2 digits, that's why. हाँ कोई बात नहीं बेटा, कर लेते हैं ना. देखो ये
जी वाला तो सिंपल ही है, ए सब जगह ए ही है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड इट गिव्स ए बी ए। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि यदि हम 22 इंटू 22 करेंगे तो क्या आएगा, 484 आएगा कि नहीं आएगा, 484 नहीं आएगा, मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। सपोज आई एम गोइंग टू टेक 11 into 11, if we take हाँ if we take a is equals to 1 and b is equals to 2, तो ये हो जाएगा, therefore this 11 multiply by 11 is what, 1 to 1 ना, आ गया। therefore the value of a uh, therefore a is equals to 1 and b is equals to 2 are the correct values। बेटा क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. चलो जी वाला भी हो गया, अब एच भी नहीं आ रहा है आपको? एच और आई ट्राई करोगे कि वो भी करके दूं? Do you want to try this to solve this h and I? No, sir. No. Just try it. Try it. Take 2-3 minutes and just try it. Then we will discuss. Sir, H में A is equal to 2, B is equal to 6 and C is equal to 9. A is equals to 2. Yes, sir. A is equals to 2. B is equal to 6 B is equals to 6. And C is equals to and C is equal to 9. 9. 9. 5, 9, 6. 5, 9, 8 होगा ना? No, sir. 5, 6. 9, 8 ही होगा ना बेटा, कैसे बोल? हाँ 5, 9, 6 Sir, आता B का आंसर 6. ओके ओके, तो 23 into 26 is equals to 5, 9, 8 आ रहा है, वेरीफाइड आ रहा है तो करेक्ट है, आ ही रहा होगा वैसे तो। Yes. Sir, B is equal to 6, not 9. 8, sir. इन विच, किसमें किसकी बात कर रहे हो Sir, आप? H. B is equals to what? 9। 6. तो 6 ही तो लिया है बेटा। Sir, you have taken 8. कहाँ 8 लिया है बेटा? बी बी ये रहा ना, ये बी है हमारा, और यहाँ बी 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 Yes. 6 लिया है ना बेटा, कहाँ मैंने 9 लिया, 8 लिया है। Yes, sir. चलो लास्ट वाले में, what will be the value of AB into AB is equals to 6AB? Sir, 2 and 5. A is equal to 2 and B is equal to 5. सिंपली पता चल रहा है, 25 into 25 6 to 5, करेक्ट ना? therefore the value of A is 2 and Yes, sir. Correct. okay, hope it is clear to everyone. Solutions, all the solutions Yes, sir. of this sorry, question number 3. Now move to the question number 4. ये भी सिंपल सा ही है, find the values of the letters in the following puzzles। तो वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं। एडिशन वाला तो आसान होता है, सब्ट्रैक्शन वाले में गड़बड़ होता है। देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास में 4 आएगा, तो इट इज वेरी क्लियर, यदि एक ही जगह पे मैं 8 रखूंगा तो 8 + 6 कितना होता है? 8 + 6 is how much? 14. या ओके, 14 का 4 यहाँ पे आ गया, 4 के बाद 1 कैरी चला गया, राइट। अब यहाँ पे 9 है और ये 1 है, अब यहाँ पे हमको 6 चाहिए, तो 10 + 6 16 होता है, करेक्ट ना? या फिर आप बात करो 9 है यहाँ पे, 9 + 7, 9 + 7 is how much? 9 + 7 is how much? 16। तो यहाँ पे यदि मैं 7 रखूंगा तो 7 + 1 8 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमको 6 रखना पड़ेगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। इज दैट क्लियर? 6 तो ऑलरेडी है, तो 9 + 6 15 और जो 1 कैरी गया है दैट विल बी प्लस, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? therefore the value of b is 6। is that clear? 16 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे c फाइंड करना है, तो 14 लाने के लिए 6 में क्या ऐड करेंगे हम? बोलिए।
14 लाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे ना, तो 8 यहाँ, हाँ 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? द वैल्यू ऑफ सी इज 7, तो 7 + 1 8, 8 + 6 14, 1 कैरी फिर से आ गया यहाँ पे, और बी की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ले ही ली है, क्या ली है 6, तो क्या हो गया ये 6 + 1 7, 7 + 3 10, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, ए की जगह पे 8, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए is 8, the value of B is 1, the value of C is what, 7, and the value of D is 0, and the value of, बस A B C D ही तो है। Is that clear? अब देखो वैल्यू रख के आप देख लो, यहाँ पे क्या है, therefore this A कितना है हमारा 8, B कितना है हमारा 1, C कितना है हमारा 7, B कितना है हमारा 6। Sir, B is 6. सॉरी मिस्टेक कर दिया ना, B is 6, B is 6, then C is 7, then again B is 6, and then 6, right? Plus कलर चेंज करना पड़ेगा, जस्ट 6 हो गया, यहाँ पे नीचे क्या है, प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, 3 6 9, ए कितना है हमारा 8, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 1 कैरी, तो कितना लिया मैंने 9, हाँ 9 + 6 15 + 1 16, 1 कैरी, 7 + 6 13 + 1 14, 1 कैरी, 6 + 3 10, सॉरी 6 + 3 9 + 1 10, 1 कैरी, 8 1 9, करेक्ट आ रहा है ना। Yes, sir. आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ नीचे वैल्यूज रख के सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो कैन यू सॉल्व दिस बी एंड सी इन दिस वे? क्या ट्राई करोगे आप लोग कि मैं ये करके दूं? इट्स बेटर, हाँ प्लीज ट्राई इट नाउ, आप ट्राई कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, जस्ट ट्राई इट नाउ। सर डन, डी ओके डी हो गया सर। ओके, लेट अस डिस्कस हियर। 6 + 7, Yes, sir. 6 + 7 is how much? 6 + 7 is how much? Sir, it is minus. Sir, minus. Sorry. Okay, so then 16 - 7 is how much? 9. 9। 9 9 यहाँ भी आएगा तो 9 यहाँ भी आएगा, ये तो क्लियर हो गया, 9 आ रहा है तो सब जगह 9 ही होगा, राइट ना, क्योंकि सब जगह सी है। तो यहाँ पे क्या है, 16 - 7 is 9, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा 3 बचा ना। Am I clear? Yes, sir. 3 में से कितना माइनस करेंगे कि 9 आएगा, तो मतलब 13 में से 9, 13 में से कितना माइनस होगा कि 9 आएगा, 4. 4, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 4, 13 - 4 is 9, यहाँ पे बचेगा क्या 1 बचेगा ना, क्योंकि 1 तो कैरी कर लिया हमने। अब 11 है, 11 में से 2 गया तो 9 आ ही गया, होप इट इज क्लियर। 11 - 2 is 9। अब यहाँ पे भी Yes. तो, हाँ यहाँ पे भी तो 1 माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 माइनस है ऑलरेडी, मतलब ए की जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे हम, बोलिए। अब देखो यहाँ पे मतलब कि हम ए में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, बोलिए। 14. 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, बोलिए। 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 9. 13 में से 8 8 आता है बेटा, 8 सर 14 सर 14 5 वैल्यू जाएगा। हाँ लेकिन लिसन, यदि मैं ए की जगह पे 4 लेता हूँ, लेकिन 4 में से तो 1 कैरी चला गया है इधर, इसका मतलब यहाँ पे हमको 5 लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ क्योंकि यदि मैं 4 लिया तो 4 में से तो 1 कैरी इधर पहले से ही गया है, तो मतलब ये 3 हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव टू टेक हियर 5। तो 5 में से 5 मतलब यहाँ पे 1 कैरी चला गया, बचा 4, 4 में से
मतलब 14 में से 5 गया तो 9 आया. इज दैट क्लियर? therefore we can have this like this one 1 5 यहाँ पे क्या लिया हमने 2 ही लिया है ना 2 4 6 then minus 5 2 4 and 7. अब माइनस करके देख लो 16 minus 7 is 9. यहाँ पे 13 आएगा 13 minus 4 is 9. यहाँ पे 11 आएगा 11 minus 2 is 9. यहाँ पे 4 आएगा 14 minus 5 is 9. Is that clear or not? Students, is it clear? Yes, sir. किसी को कोई Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस C1 डन. सी वाला कर लिया आप लोगों ने? C1 डन. सी वाला सी वाला हो गया कि नहीं? Yes, sir. done, sir. डन ना. तो चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर. लिसन 7 है और यहाँ पे B है. 7 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 6. तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा? तो B की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? देखो 7 7 1 जा 7 7 2 जा 2 लेंगे तो कैसे होगा बेटा? 7 2 जा 14 होता है, लास्ट में 4 आएगा. 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 8 जा 8 लेना पड़ेगा ना. 7 8 जा लेंगे तो ही लास्ट में 6 आएगा. am I clear? Students, am I clear? If you take B is equals to Yes, sir. 8 and then Sir. yeah, बोलिए कुछ बोलना है किसी को? No, sir. 7 8 जा 56 तो 5 कैरी हो गया. यहाँ पे 5 तो कैरी हो गया. अब यहाँ पे जो भी डिजिट हम लेंगे A की जगह पे उसमें +5 करना रहेगा हमको. +5 करना रहेगा. यदि मैं A की जगह पे 1 लेता हूँ तो 7 1 जा 7 7 + 5 12 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो रहा है ना ये. तो यदि मैं A की जगह पे 1 लेता हूँ 7 1 जा 7 7 + 5 हाउ मच? 7 + 5 हाउ मच? 12. तो ये ट्रू हो रहा है ना, तो 1 ले सकते हैं ना हम. तो जस्ट आई हैव टेकन A इज इक्वल्स टू 1. तो 7 1 जा 7 7 + 5 12. अब अगेन 12 में 1 कैरी चला गया. ठीक है सर C equal to 2. हाँ. यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 7 2 जा 14 14 + 1 15. मतलब ये ट्रू हो गया. therefore we have 2 1 8 multiplied by 7 gives 7 8 जा 56 5 carry 7 1 जा 7 7 + 5 12 1 carry 7 2 जा 14 + 1 15. therefore the value of A is 1. Sorry, yeah. The value of A is 1, the value of B is 8 and the value of C is 2. Hope it is clear to everyone. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लो इसको फिर चलते हैं नेक्स्ट पे. सर हाँ बोलिए. सर मुझे 4th चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आ रहा, डाउट है. 4th चैप्टर का बेटा ये जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला है. ये 4th चैप्टर. हाँ सर नहीं कर रहा है अभी. 4th chapter that is not coming in your PA1 exam. Why you are doing 4th सर chapter? ये 10th एच का है. सर ये 10th एच का है. शुभम. शुभम राज. Okay, now move to the question number 5. अभी तक हम लोग एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे. Now we are going to divide. Okay. In question number 5, you have given two questions A and B. Find the values of the letters in the following division. It's very interesting and very simple. See, 9 is the divisor, 4 8B is the dividend, AC is the quotient and 0 is the remainder. Okay, तो 9 यहाँ पे 48 है. तो 48 9 के टेबल में 48 आता है क्या? नहीं आता है ना. तो 9 4 जा 36 9 5 जा 45. या तो यहाँ पे 5 लेंगे हम और यहाँ पे A की जगह पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. 45 करेक्ट. तो 9 5 जा 45. तो 8 - 5 3
एंड 4 माइनस 4 इज 0. अब ये b नीचे आया, b कहाँ पे आया, नीचे, और यहाँ पे 36 है, तो 9 4 जा 36 होता है, तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ c इज 4. 9 4 जा 36. अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो इट इज वेरी क्लियर, ये भी 6 होगा. एम आई क्लियर? दैट मीन्स 9 8 और b की वैल्यू मैंने 6 ली, एंड इफ वी डिवाइड दिस बाय 9 नहीं है, ये 4 है, 4 8 6 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 5 जा 45, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड 9 4 जा 36. दिस होल्ड्स ट्रू. Yes. Therefore, the value of A is 5, the value of B is 6, and the value of C is 4. yeah. Can you solve this B1 in the same way? Can you try to solve this B1 now? Students, please try to solve this B1. ये B वाला आप देखो बहुत आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हो. So just try it now. Are you going to try or not? Sir. Okay, try it now. Sir, we can try. Yeah, try it. Similarly, if you solve this B1, 24 और यहाँ पे क्या है 8 और A, तो 24 3 जा कितना होता है, 24 3 जा, yes anyone, 24 3 जा 72. 72, तो यहाँ पे A की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना. Here it is 7. Yes, sir. 24 3 जा 72, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा. Yes Harry, any problem? So by mistake. 7 minus 2 is 5, and here 8 minus 7 is 1. 15 आ गया, 150. तो ये जो तीसरा डिजिट है इसमें कहाँ पे है, ये जो दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा, ये 0, तो ये तो 0 ही है, नीचे आया. अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, CC. अब C है मतलब यहाँ पे B. अब यहाँ पे 150 है, तो 24 के टेबल में 150 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 24 24 6 जा 144. या 24 6 जा, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 ना. Yes, sir. तो 10 minus 4 is 6. 10 minus 4 is 6, and यहाँ पे क्या आ गया, 4 minus 4 is 0, and 1 minus 1 is 0, तो ये 3 नीचे आया. अब यहाँ पे C तो हमारे पास आ ही गया है, 4 है, तो यहाँ पे 4 ही होगा, राइट ना. यहाँ पे 4 होगा, तो 24 2 जा 48, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 48, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, राइट. तो 63 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा, ये 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, 5 में से 4 गया तो 1. E की वैल्यू क्या आ गई 1. 156. तो फिर से कितने बार जाएगा, F कितना हो जाएगा, 6 टाइम ही जाएगा ना. आ गया समझ में. Therefore the value of A की वैल्यू क्या आई हमारी 7, the value of B is 6, the value of C 4, the value of D कितना आया 8. 8, and the value 8. of E 1. 1, और कुछ बचा है, value of F is 6. 6. Hope it is clear to everyone. Is it clear? Yes, sir. Clear. We will solve this question number 6, 7, 8 in the next class. This is all for today's class.